All right. One of the things I look forward to is the message and the study of God's word. सबसे ज्यादा जो मैं इंतजार करता हूँ वो परमेश्वर के वचन के लिए, उस संदेश के लिए है. On my Facebook status in the morning, as I was getting ready, and I put a status, and it's a words from the book of Acts. आज सुबह जब मैं तैयार हो रहा था तो परमेश्वर का वचन मुझे एक याद आया प्रेरितों के काम की पुस्तक में से. And I put that on my Facebook status. और वो मैंने अपने फेसबुक में एक कथन के रूप में डाला. You know, the believers, the people of God in the early church, they devoted themselves to the teaching of God's word. प्राचीन काल में कलीसिया में जब वचन सिखाया जाता था तो ये वचन दिया गया था. They devoted themselves to the study and the teaching of God's word whenever they came together. जब भी वो लोग एक साथ इकट्ठे होते थे तो वो समय निकालते थे, अपने आप को समर्पित करते थे कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें. And so one of the things that we at LifeBridge wants to do is to continue the legacy of the apostles, and that is to dig deep into the word of God. और जो हम कर सकते हैं कलीसियाई रूप से आज वो यह है कि परमेश्वर के वचन के साथ और गहराई से हम गोता मारें. Amen. Amen. I believe the more deeper we go in the word, the more spiritually we grow and become vibrant in the Lord. मैं जानता हूँ जितना गहरा हम वचन में जाते हैं उतना हम परमेश्वर के लिए और जोशीले बन जाते हैं. Last Sunday we actually looked at a book from the book of Judges. पिछले हफ्ते हम लोगों ने न्यायों की पुस्तक में से सुना था. And I was preparing the sermon for a Mother's Day service. और मैं बहनों की मातृ दिवस की आराधना के लिए वो संदेश को तैयार कर रहा था. And I was reading the book of Judges. और मैं न्यायों की पुस्तक पढ़ रहा था. And of course we talked about an amazing woman, unusual woman by the name Deborah. और हमने एक बड़ी असामान्य स्त्री के बारे में पढ़ा था जिसका नाम दबोरा था. If you missed last Sunday's sermon, please do make sure to go to our YouTube channel and listen to that message. अगर आपने किसी तरह से पिछले हफ्ते का संदेश छोड़ दिया तो कृपया करके YouTube चैनल पे जाकर उस संदेश को जरूर से सुन लें. But as I was reading the book of Judges, लेकिन जब मैं न्यायों की पुस्तक पढ़ रहा था I was fascinated by this book. मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया. So I'm continuing my teaching from the book of Judges. इसलिए मैं अपना अध्ययन न्यायों की पुस्तक से लगातार बढ़ा रहा हूँ. I know a lot of people don't like the Old Testament. मैं जानता हूँ कई लोगों को पुराना नियम पसंद नहीं आता. One of the reason is the complicated names that you find in the book of Judges. कई बार जो कठिन कठिन नाम है और जो चीजें कठिन कठिन बताई गई हैं पुराने नियम And में then वो there बड़ा is a मुश्किल lot होता है. of complicated stories weaved into this book. और बड़ी जटिल कहानियां सी हैं इस पुराने नियम में जो पाई जाती हैं. But I firmly believe that God has a very unique reason for including all of those amazing stories of God's people throughout the pages of the Old Testament. लेकिन मैं ये जानता हूँ पुराने नियम में जितने भी लोगों के बारे में बताया गया है उनका कुछ विशेष एक उच्च एक कारण था जिसके कारण वो सब कहानियां उनका नाम लिखा गया Look है. at this, friends. इस बाइबल के आधे हिस्से को देखें शुरुआती. If you don't like Old Testament, अगर आपको पुराना नियम पसंद नहीं है तो you have a problem आपके साथ कुछ परेशानी है because you have a lot of pages to read. क्योंकि बहुत से पन्ने हैं पुराने नियम में And जो the हमको New पढ़ने हैं Testament is only this much. और नया नियम जो है बस वो इतना ही है. So if God did not want us to learn Old Testament, He would have only given us this much. अगर परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम पुराना नियम से अध्ययन करें तो परमेश्वर हमको सिर्फ इतना ही दे देता. So नया I नियम. believe that the whole Bible is inspired of the Lord. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ पूरा वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है. And the Bible is given for us that we can learn from the past and we can look into the future. और बाइबल हमको ऐसी दी गई है परमेश्वर के द्वारा कि हम भूतकाल को देखें ताकि हम भविष्य की ओर बढ़ So सकें. today we're going to look at Judges chapter 10. इसलिए आज हम न्यायों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय And देखने I'm जा रहे हैं. titling my teaching today, Know Your God. और मैं आज अपना संदेश का शीर्षक ऐसा दे रहा हूं अपने परमेश्वर को जानना. Knowing your God. अपने परमेश्वर को जानना. This morning as Valentina was leading us, आज सुबह जब वेलेंटिना हमारी अगुवाई कर रही थी she began talking about the God that you worship. उन्होंने शुरुआत ये बोलते हुए करी कि आपको अपने जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसको जानना You are है. like the God you worship. You are? You are like the God you worship. आप उस परमेश्वर के समान है जिसकी आप आराधना करते हैं. And you are like the God that you know. और आप उसके समान है जिसको आप जानते हैं. And so it's very important that we know our God. और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को जानें. It's also very important that you know your God really, really well. और ये बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छे से हम अपने परमेश्वर को जानें. How many of you know that we can be part of the same family?
आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हम एक परिवार का हिस्सा बन You सकते हैं? can be with your grandfather and grandmother, mom and dad, brothers and sisters, आप अपने दादा दादी या नाना नानी या अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ एक परिवार में रह सकते हैं and still not know each other. और फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे को ना जानते There are हैं। a lot of people who don't know each other, Kay- even within their own family. कई ऐसे लोग हैं जो परिवार के अंदर भी एक दूसरे को नहीं जानते हैं। And so it is important that you know your God. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने परमेश्वर को जानें। Sometimes, you have storms and wind comes and rain comes. And when all that is over, you go for a walk, you find a lot of trees that have cut down and fallen down on the roadside. कई बार आपने अनुभव किया होगा, आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है और उसके खत्म होने के बाद जब आप एक चलने के लिए जाते हैं तो आप पाते हैं कि सारे वो पेड़ वगैरह सब सड़क पे रहते And हैं। I always wondered why these trees fell down. और मैं हमेशा ये सोचने लगता था कि ये पेड़ क्यों गिर जाते हैं। And I go and look at this tree. और मैं जाकर उस पेड़ को देखता हूँ The tree next to it is still standing. और उसके साथ में जो पेड़ खड़ा है वो अभी भी खड़ा है। But this tree had a lot of branches, lot of leaves. लेकिन इस दूसरे पेड़ की बहुत सी टहनियां थी, But it broke and fell. लेकिन वो टूट गई और वो गिर गया। And I like to look at closely why it happened. और मैं बहुत ध्यान से नजदीकी में जाकर ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। Often I find that those branches had some worms or something that has gone into the stem or the branch of the tree that started eating or some damage on the main stem. कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया कि वो पेड़ इसलिए कमजोर होके गिर गए क्योंकि उसमें कीड़े लग गए या उसमें ऐसी कोई चीजें थी जो उनकी जो मेन जो टहनी थी, And so because of the storm, और इसीलिए तूफान के कारण this tree fell down. ये पेड़ गिर गया। You see, the other trees did not fell down because they had no damage. It was strong. It had no sickness. It was healthy and it was able to survive the storm. देखिए दूसरे पेड़ खड़े रहे, उनको कुछ असर नहीं हुआ, वो उस तूफान के बीच में भी स्थिर बने रहे, बीमारी आई या कुछ भी आया तो भी वो स्थिर खड़े रहे। And so it is with the people of और God. वैसे ही परमेश्वर के लोगों के साथ भी है। You see the same within the local church. आप एक जो स्थानीय कलीसिया है उसमें भी ये बात पाते We हैं। see the same group of people coming together. आप देखते हैं कि वही सारे लोग एक साथ मिलकर इकट्ठे होते Everybody हैं, is coming to church. सब एक साथ मिलकर आराधना के लिए समय Everybody is मिलते giving to the Lord. हैं, सब लोग परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, Everybody is worshiping the Lord. सब लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे But हैं। there are some people who never thrive in the midst of obstacles and problems. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं और आफतों के बीच में खड़े नहीं रह पाते। You find them crumble, you find them fall, you find them weak and weary and complaining and murmuring. आप देखते हैं कि वो लोग घबरा जाते हैं या उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वो ठोकर खा जाते हैं, गिर जाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते The हैं। reason is because they have some problem in their life. कारण ये है क्योंकि उनके जीवन में कुछ परेशानी है। And so it is very important इसलिए ये बहुत जरूरी है that you as a child of God become strong in God and deeper in God. कि आप परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर में मजबूत हो जाएं और गहरा आपका संबंध That हो, you don't drift away from the Lord. कि आप परमेश्वर से दूर ना हो जाएं। Book of Judges chapter 10 is all about a people who had some problem with the stem, with the root of their tree. न्यायियों की पुस्तक के 10वें अध्याय में हम पाते हैं कुछ ऐसे लोग थे जिनकी जड़ें ही कमजोर थी, जिनकी जड़ों में कुछ समस्याएं The थी people of the Lord, Israel, continued to drift away from the और Lord. परमेश्वर के लोग लगातार परमेश्वर से दूर जाते रहे। And even in Christian life, और इसलिए मसीही जीवन में भी many times we allow ourselves for moths to come, for germs to come and infect the core of our being. और कई बार हम मसीही होकर भी हम कीटाणुओं को और कीड़ों को अनुमति देते हैं कि वो हमारे जीवन में आके घुन के समान हमें खा A जाएं। man of God by the name Thomas Guthrie. एक परमेश्वर के जन थॉमस करके हैं, उन्होंने ऐसा कहा। Thomas Guthrie says, थॉमस गत्तरी ऐसे कहते हैं, if you find yourself loving any pleasure more than your prayers, अगर आप अपने जीवन में प्रार्थना से बढ़कर किसी और चीज का आनंद उठाते हैं, any book better than the Bible, बाइबल से ज्यादा किसी दूसरे
किताब को पसंद करते हैं, any house much better than the house of the Lord, परमेश्वर के घर से ज्यादा किसी दूसरे घर से प्रेम रखते हैं, any table better than the Lord's table, कोई भी दूसरी मेज को परमेश्वर की मेज से ज्यादा पसंद करते हैं, any person better than Christ, मसीह से ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम रखते हैं, or any indulgence better than the hope of heaven. और किसी और चीज से में ज्यादा पढ़ने से ज्यादा अपनी आशा स्वर्ग की ओर रखते हैं। Beep, 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 beep. It's the sound of an alarm. ये एक अलार्म की जैसी एक आवाज है। Danger is around the corner. ये हमको चुनौती दे, हमें आगाह कर रही है कि एक डर है, एक खतरा Are you है। drifting away from the Lord? क्या आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं? Our scripture portion for our study today reveals to us the reality of how God's people can slide deep into utter hopelessness and sin. आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर के लोग कैसे पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। If you want to really study the book of Judges, अगर आपको सचमुच में न्यायों की पुस्तक पढ़नी है तो, especially if you want to study Judges chapter 10, अगर आपको विशेष रूप से न्यायों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय पढ़ना है, you need to read Deuteronomy chapter 8. आपको व्यवस्था विवरण 8 पढ़ना पड़ेगा। So if you look at Deuteronomy chapter 8, अगर आप व्यवस्था विवरण 8 पढ़ लें तो, I'm not going to read and study through the book of Deuteronomy chapter 8 today. मैं व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय से आज पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, But it is important to understand the context. लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम संदर्भ को समझ लें। The whole book, the context of the book of Judges is very dark in the history of Israel. जो इतिहास है, जो संदर्भ है, जो हम न्यायों के 10 अध्याय में पाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक अंधेरा वाला एक काल है। Those of you know the story of Israel, dark seasons or dark period for Israel is nothing new. इजराइल की अगर हम इतिहास को समझने की कोशिश करें, अगर हम जानते तो हम जानते हैं कि एक अंधकार से भरा एक काल जो है बार बार उनके लिए जीवन में आया, वो नया They नहीं had था। many of those seasons of ups and downs. कई बार उनके जीवन में उतार चढ़ाव के मौसम आए, But you should keep the warnings that Moses, the great servant, had given to the people of Israel. लेकिन हमको अपने दिमाग में ये बात ध्यान से रखनी है, मूसा के द्वारा कई बार इजरायली लोगों को आगाह किया गया। Moses is telling the people of God परमेश्वर के लोगों को मूसा कहता है, in chapter 8, way back in history, हम बहुत पहले इतिहास में मूसा अपने परमेश्वर के लोगों से कहता है, be careful to follow every command I'm giving you today. तुम लोग बहुत ध्यान से आज जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं उसको सुन लो। So God is speaking through Moses इसलिए परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता and है telling the people of God, और परमेश्वर के लोगों से कहता है, be careful to live and obey the command of God. ध्यान से अपना जीवन बिताओ और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। Underline the word every command. उस चीज को आप रेखांकित कर ले, हर आज्ञा को। It does not say some command. वहां ये नहीं लिखा कुछ कुछ आज्ञाएं, It says so that यानी- you may live and increase and may enter and possess the land the Lord has promised to your ancestors. यहाँ ऐसा लिखा है, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों को शपथ खिलाई थी, जाकर उसके अधीन हो जाओ। Everybody say it with me, live. सब लोग बोलें जीवित रहें। How many of you want to live? हम में से कितने लोग जीवित रहना I'm चाहते not हैं? just talking about going through the motion of life. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीवन जैसे चलता है वैसे ही, There are many things that live. कई ऐसी चीजें हैं जो रहती हैं The जीवित। dogs also live. कुत्ते भी जीवित रहते हैं, Everybody is living. सब लोग जीवित रहते But हैं। do you just want to live or do you really want to live? आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं कि सच में जीवित रहना This चाहते is हैं? talking about the real life. यहाँ पर एक सच में जीवन जीने वाली A बात है, life that is of increase. जो ऐसा जीवन जीना जो बढ़ोतरी का जीवन है। Everybody said the word increase. बढ़ोतरी, सब लोग बोलें Increase. बढ़ोतरी। How many of you like the word increase? आप में से कितने लोग को ये शब्द पसंद है, Yeah, how बढ़ोतरी? many of you want to increase? आप में से कितने लोग बढ़ना चाहते What do you हैं? want to increase? आप क्या बढ़ाना चाहते Well, I हैं? know I want to increase my bank balance. मैं जानता हूँ कई लोग बोलेंगे कि मैं अपने बैंक का खाता बढ़ाना चाहता हूँ। Yes, right? Of course we want that. मैं जानता हूँ हम सबों को उसकी Or जरूरत some of है। you may say, I want to increase my muscles. कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपनी मांसपेशियां बढ़ाना चाहता हूँ। Or we want to increase the size of my house. कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने घर का जो है
आकार बढ़ाना चाहता हूँ, कमरा बढ़ाना चाहता हूँ। Or you may say, I want to have an increase in my salary. और कई लोग सोचते होंगे अपने वेतन को मैं बढ़ाना चाहता But हूँ, what sort of increase are you really seeking from लेकिन वो God? किस प्रकार का एक बढ़ोतरी है जो आप परमेश्वर से खोज कर रहे हैं? That they may enter and possess the land. कि वो जाकर उस भूमि का अधिकारी बन जाएं। Hallelujah. आमेन। Enter and possess the land. उस भूमि में प्रवेश कर कर उसके अधिकारी How बन many जाएं। of you want to enter the promised land that the Lord has promised to you? आप में से कितने लोग उस भूमि उस वाचा की उस भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं जो परमेश्वर If ने you आपको read दी? through chapter 8, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, verse 2, it says, remember. दूसरे पद में लिखा है स्मरण रखो, And verse 6, it says, observe the commands of the Lord your God. और आज्ञा, और छठे पद में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, Walking in obedience to Him and reverence to Him. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो और उसका पालन करो, For the Lord your God is bringing you into a good land. क्योंकि परमेश्वर तुमको एक उत्तम देश में ले जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is taking you in a journey. परमेश्वर आपको एक यात्रा में लेकर जा रहा The है। journey has just begun. यात्रा अभी शुरू ही हुई है। Hallelujah. There is a much more greater things in God that you haven't reached yet. परमेश्वर के द्वारा ऐसी बहुत सी उच्च उत्तम चीजें हैं जहां पर आप अभी तक पहुंचे नहीं Verse हैं। 10, पद 10, when you have eaten जब तुम्हारा पेट भर and गया are satisfied, और तुम संतुष्ट हो गए, praise the Lord your God अपने परमेश्वर को धन्य कहो for the good land He has given to जो you. उत्तम देश परमेश्वर ने तुमको दिया है। I remember, always we are very good at giving thanks to God before we eat the food. हम कई बार मैं याद करता हूँ कि हम लोग खाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत But अच्छे do से you know जानते हैं। that is not the real prayer? लेकिन आपको पता है वो एक सच्ची प्रार्थना नहीं है। The real prayer should happen at the closing when you had your ice cream and your apple pie and you had your coffee. That is when you should say, let's pray. लेकिन आपकी सच्ची प्रार्थना तब होनी चाहिए जब आप आइसक्रीम खा लिए होते हैं, अपने एप्पल पाई और कुछ भी खा लिए होते हैं तब। After you had eaten your ice cream and your apple pie and you had your coffee, now all you want to say is, now it is sleep time. और आप लोग क्या करते हैं जब हम आइसक्रीम खा लेते हैं, एप्पल पाई और कॉफी सब पी लेते हैं, तब हम बोलते हैं ये अब सोने का समय है। How many of us remember to stop to thank God for what we are enjoying in this life? हम में से कितना लोग समय लेते हैं रुक कर कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें अच्छे आनंद के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। And so, in spite of all the clear instruction Moses, the great servant of God, has given to the people of Israel, जबकि परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा बड़े ही स्पष्ट रूप से आज्ञाएं दी गई थी परमेश्वर के we लोगों come को। to chapter 10 हम 10वें अध्याय में आते हैं and we see the people of God again going back to the same old way. और हम न्यायों के 10वें अध्याय में देखते हैं परमेश्वर के लोग जो है वापस चले जाते हैं फिर भी परमेश्वर से। In Kerala, because we have tropical weather, we have all kinds of bugs and creatures. हमारे केरला में क्योंकि बहुत ज्यादा एक मौसम जो है बारिश वाला होता है तो बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह होते हैं। And one of the creature is a black centipede, well, that has hundreds of legs. Centipede, what do you call that? हिंदी एक छोटा सा कीड़ा होता है। Centipede, okay. एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसकी बहुत से पैर वगैरह होते हैं। It has hundreds of legs. उसके 100 से भी ज्यादा पैर And होते it is हैं black in और color. वो काले रंग का होता है। And if you touch, अगर आप उसको बस छू लें it will emit a chemical that will sting into your nose. उसके अंदर से एक धातु निकलता है जो हमारी नाक पे घुस जाता है। And if that chemical falls on your skin will become red. और अगर वो धातु जो उसमें से निकलता है कीड़े में से अगर हमारी शरीर कान खजूरा अगर वो हमारी स्किन पे लग जाए, हमारे मांस में लग जाए तो वो एकदम से लाल हो जाता है। And so sometimes we when we were kids, these centipede live in one of the most dirtiest places where it is slimy, muddy, dirty. और जब हम छोटे से थे तो मैं देखता था कि ये कान खजूरा जो है एक गंदी सी और मतलब जहाँ पे कीचड़ जैसी है पानी की जगह वहां पर रहता है। We as kids used to go and collect these centipedes. और हम जो छोटे बच्चे होकर सब इकट्ठे होकर उसको इकट्ठा करते And थे we bring them to our house. और हम उनको अपने घर लेकर आते थे And we try to put them in a box in a nice place. और हम उनको बड़ी अच्छी से
सी जगह में एक डब्बे के अंदर रखना चाहते थे, thinking that we can keep them like pets. ये सोचकर कि हम उसको कोई घर का पालतू के जैसे संभाल के रखेंगे। After 1 hour, लेकिन 1 घंटे के बाद you will find them all out of their box, back into the same place where they came from. आप 1 घंटे के बाद देखेंगे वो फिर दोबारा बक्से में डब्बे में से निकलकर वापस वही कीचड़ में चले There जाते are some people like that. हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, No matter how hard you try to bring them hope and meaning and purpose, they will always go back to the same place where they came from. ये मतलब नहीं होता कि उनको आप कितना भी अर्थ समझा दो, सच्चाई बता दो, वो वापस फिर उसी जगह में जाना चाहते हैं। This is the problem with the people of Israel. यहाँ इजराइल के लोगों के साथ यही परेशानी थी। What did they do? उन्होंने क्या किया? Let us find out what the scripture says. देखते हैं वचन में क्या लिखा है। It says in verse 6. पद 6 में लिखा है, Can somebody read it loud? Verse 6. क्या कोई जोर से पढ़ सकता है? Again. फिर दोबारा। Everybody say again. सब लोग बोलें दोबारा। Again. दोबारा। Again. दोबारा। Again. What did they do? दोबारा से उन्होंने क्या किया? पढ़िए। Judges chapter 10 verse 6. Again, the people of God, the people of Israel, they did evil in the eyes of the Lord. तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। How many times you find the word, the people of God doing evil, doing evil. They did evil in the Old Testament. कितनी बार हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति बार-बार बुरा किया, बार-बार You know what बुरा is the किया। problem? आपको पता है इस परेशानी क्या है? It is the problem of the sin nature in each one of us. परेशानी यह है कि हम सबों के अंदर जो एक पापी स्वभाव है, Human being by essence and by nature are evil. मनुष्य जो है अपने स्वभाव में ही पापी है। Because sin has entered into us through the sin of Adam. क्योंकि पाप हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है आदम के पाप के द्वारा। Let me also mention Eve. हवा के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। Adam and Eve. हवा और आदम। Let's not blame on poor Adam alone. हम बेचारे आदम को ही दोष ना दें सारा। दोनों मिला के पाप किया है ना? दोनों ने मिलकर Right? आदम और हवा। So from that day onwards, we have inherited something from our grandparents. इसलिए हमने अपने पुरखाओं से कुछ ना कुछ वहां से विरासत के रूप में पाया है। And so what did they do? इसलिए उन्होंने क्या किया? They forsook, they served Baals and the Ashtoreths and the gods of Aram, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, the gods of the Philistines. उन्होंने क्या किया? दूसरे देवी देवताओं की आराधना करी, बाल देवता की आराधना करी और वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर क्रोधित हो गया। And so what happened? इसलिए फिर क्या हुआ? Because of their sin. उनके पापों के कारण, Because they neglected God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नजरअंदाज किया। Look at verse 6, आइए पद 6 देखते last हैं, part. उसका आखिरी भाग। And because और क्योंकि the Israelites forsook the Lord क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया and no longer served him, और परमेश्वर की सेवा नहीं की, God became angry with them. परमेश्वर उनके साथ क्रोधित हो गया। You see, this is the problem. देखिए ये समस्या है। The people of God again and again going after the gods of this world. परमेश्वर के लोग जो है बार-बार दूसरी देवी देवताओं के पीछे भागे। So in chapter 10, इसलिए पद 10 में we see in verse 1, हम अध्याय 10 का पहला पद देखते हैं। after the time of Abimelech, अबीमेलेक के बाद a man of Issachar named Tola, son of Pua, the son of Dodo, rose to save Israel. He lived in Shamir in the hill country of Ephraim. यहाँ पर ऐसा लिखा है, अबीमेलेक के बाद इज़राइल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इज़हाकरी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र और एमेल के पहाड़ी देश में शामिल नगर में रहता था। वह 33 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता था, तब मर गया और उसको शामिल में मिट्टी दी गई। How many of you are looking for names for your children? आप में से कितने लोग अपने बच्चों के लिए नाम ढूंढ रहे हैं? Please don't select these names. कृपया करके नामों को मत उठाना है। Hey Dodo, come here. हे डोडो इधर आओ। Hey Tola. हे तोला इधर। What a wonderful name, huh? कितने अच्छे नाम I हैं। always get a good laugh when I think about some of these names. जब मैं नामों के बारे में कभी-कभी देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। Dodo, Pua, Tola. दोदो, पोआ,
तोला। But do you know the word dodo actually is a good name? आपको पता है दो दो जो नाम यहाँ पे लिखा है उसका एक अच्छा The मतलब है। Hebrew word dodo means loving. इब्रानियों नाम दो दो का मतलब है कि प्रिय। So don't get all, sensitive. It's after all a good name. आप बहुत ज्यादा संवेदनशील से ना हो जाएं, ये अच्छा ही नाम है। But interestingly enough, लेकिन रुचिकर रूप से a man of Issachar named Tola rise up. एक व्यक्ति जो है जिसका नाम तोला था, जो राजा था। There is not much mentioned about this judge by the name Tola. इस न्यायी का नाम तोला जो है, उसका नाम बार बार दोबारा नहीं बताया गया है। He reigned for how many years? ये कितने सालों के लिए उसने राज्य किया? I believe for 23 years he served. वहां पर लिखा है कि उसने 23 वर्ष And राज्य किया। there is no big glamour attached to the name Tola. और तोला के नाम के साथ एक बहुत बड़ा कुछ आकर्षण सा जुड़ा हुआ नहीं है। Like Gideon, we know about Gideon and the exploits of Gideon. हम गिदोन के बारे में जानते हैं और उसने जो महान कार्य किए उसके बारे में भी हम जानते But हैं। here is an arm leader, an ordinary person that God raised up for the people of लेकिन Israel. तोला एक बड़ा ही साधारण सा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के लिए खड़ा किया। He was nothing to be compared to Deborah or Gideon or anybody like that. हम किसी के साथ ना दबोरा के साथ ना गिदोन के साथ उसका मेल नहीं कर सकते हैं। But we read here लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं that this man was instrumental by God amidst such gloom and doom to bring peace to the people of Israel. लेकिन हम ये यहाँ पर पढ़ते हैं जब इजराइल बहुत ही एक बुरी अवस्था से होकर गुजर रहा है, परमेश्वर इस व्यक्ति को खड़ा कर रहा है। Many times we live in the day and age where celebrity is everything. कई बार हम ऐसे समय में रहते हैं जहाँ पे बड़े-बड़े नायक लोग, नायिका लोग का समय है। Even among pastors and Christian leaders, the whole culture of celebrity is big. आजकल हम पाते हैं कि प्रभु के दासों के बीच में भी और जो मसीही अगुवे हैं उनके बीच में भी बड़ा ही एक आकर्षण सा हम देख पाते You हैं। drive a certain kind of car वो किसी प्रकार की विशेष गाड़ियों को चलाते हैं and you always walk around with bodyguards और उनके चारों तरफ उनके रक्षक होते हैं and you have gunmen behind you और उनके पीछे उनके बंदूक से संभालने वाला उनका and you make a अंगरक्षक big होता है glamorous name for yourself और वो अपने नाम के लिए बहुत ही आकर्षण बना देते हैं and suddenly you are doing big things for the Lord. और आप एकदम से परमेश्वर के लिए बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। Apostle, Bishop, Right Reverend Dr. James Chaco प्रेरित बिशप और सीधे रेवरेंड जो हैं and all the people are after this Apostle, Bishop, Dr. James और Chaco. सब लोग प्रेरित पास्टर जेम्स चाको के पीछे हैं। Everybody come and bow before me. सब लोग उनके पास आकर झुक जाते The हैं Lord is saying to you to give your earring right now. और वो कहते हैं हम सबों से कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपना जो है कान का बाली निकाल कर दे दो। Tola was a very silent man तोला जो है बड़ा ही शांत किस्म का and he व्यक्ति था achieved big things for the और Lord. उसने परमेश्वर के लिए बड़ी महान चीजों को हासिल किया। You see, you don't have to be a celebrity to be used by God. परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए आपको कोई बड़ा महान व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं He है। was a simple arm वो leader. एक साधारण व्यक्ति था But God simply used him because he was faithful in serving God. लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि वो बहुत ही साधारण रूप से परमेश्वर की सेवा How many करता of you था। have seen a television show called Ridley's Believe It or Not? आप लोगों में से कितने लोगों ने वो कार्यक्रम देखा है बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। And in some crazy things are shown in Ridley's Believe It or और Not. वहां पे बड़ी ही एक अजीब सी पागलपन या बड़ा विचित्र सी चीजें वो दिखाता है। You know, one of the shows I remember in Cambodia, they arrested a cow for traffic violation. कंबोडिया में एक गाय को जो है गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने यातायात का एक दुर्घटना में वो पाई गई उसके कारण। And they challaned the cow for traffic violation. और उस कारण से उसका चालान हो गया गाय का। And can you imagine how you can do that to a cow? आप सोच सकते हैं गाय को हम कैसे ऐसे चालान काट सकते But believe it or not, it happened in हैं। Cambodia. लेकिन आप मानो या ना मानो कंबोडिया में ऐसा हुआ था। Maybe they captured the cow and started milking the cow and took the milk as the punishment for the traffic violence. हमको नहीं पता, क्या पता उस गाय को उन लोगों ने पकड़ लिया, उसको उतना ज्यादा उससे दूध निकलवाया। When you look at Bible, we have some similar kind of stories as well. Believe it or not. जब हम बाइबल में ऐसी कुछ कहानियों को पढ़ते हैं तो कुछ कहानियां ऐसी भी हैं, मानो या ना मानो। In Bible, we have a story where the bush begins to speak.
बाइबल में ऐसी एक कहानी है जब झाड़ियां जलने लगी और बात करने लगी And there is a fire and the bush is not burning. और वो जलती हुई झाड़ियां जो है वो मतलब आग धधक रही है लेकिन वो जल Well, नहीं if रही you है। don't believe it, ask Moses, he will tell you. अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको मूसा को पूछना पड़ेगा, वो बताएगा आपको। Remember Balaam's donkey? बालाम का गधे के बारे में आप कैसे जानते हैं? Balaam's donkey started rebuking Balaam. बालाम का जो गधा था, बालाम एक व्यक्ति था, उसके गधे ने उसको डांट दिया। The donkey started speaking back to Balaam and said, "Why are you beating me? गधे ने वापस बालाम से बात करनी शुरू कर दी और बोला तूने मुझे क्यों मारा? I have been faithful all these years." मैं तेरे साथ विश्वास योग्यता के साथ अभी तक बना रहा। And the weirdest part of that story is that he didn't go. The Balaam did not go. और आखिरी भाग हम कहानी का पाते हैं कि बालाम छोड़कर नहीं गया Because he just could not believe that his donkey actually spoke. क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाया बालाम व्यक्ति कि उसका गधा उससे बात कर रहा था। And Balaam started arguing with his donkey. और बालाम जो है वो बहस करने लगा अपने गधे के साथ। And so it is with the people of Israel. और वही ऐसी बात इजरायलियों के साथ हुई। There are some crazy stories of, believe it or not, incidents happening here. कई ऐसी घटनाएं यहाँ हुई हैं जो आप या तो माने या ना माने। They began the slippery road of sliding into deep misery one after the other. वो एकदम से उन चिकने रास्तों में जहाँ फिसलना था वहां से गलतियां कर रहे थे एक के बाद एक। For 45 years. 45 years के लिए Under this mighty man of God, the people of Israel, and for 45 years, the people of Israel enjoyed peace and security thanks to the leadership of Tola and Jair. 45 सालों के लिए इस दास तोला के नीचे परमेश्वर के लोगों ने आनंद उठाया। But if you look at chapter 10 verse 1 to 5, लेकिन आप अगर 10वें अध्याय के पहले से लेके 5वें पदों को देखें तो they were not grateful to the Lord. वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादित नहीं थे। They never took advantage of the opportunity that was given to them to have a brighter future. वो कभी भी उस अवसर को जो परमेश्वर ने दिया था कि वो और भी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े, वो उसको लेने को तैयार नहीं थे। They went into the cycle of repeated offense against God. Again, the Israelites did evil in the eyes of वो the Lord. बार-बार उस चक्र में होकर गुजर रहे थे जहां पे वो बार-बार परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे। Listen to what God says in verse 13. आइए 13वें पद को देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। It says, "But you have forsaken me and served other gods." तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है। When you forsake God, जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं you will automatically embrace some other gods in your life. वो अपने आप से ही ऐसा होने लगता है कि आप किसी दूसरे ईश्वर को अपने दिल में बसा You लेते हैं। cannot live an empty life. आप कोई एक खाली जीवन नहीं जी सकते हैं। The moment you empty yourself, you will fill it with something else. जिस क्षण आप अपने आप को खाली करते हैं उसी क्षण आप अपने आप को किसी चीज से भर लेते हैं। That's why it is important for God's people to be so full of the Holy Spirit. इसीलिए ये बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो अपने आप में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहें। So full of the Holy Spirit that there is no room for anything else to occupy. इतना ज्यादा परिपूर्ण रहे पवित्र आत्मा से कि कोई जगह खाली ना बचे किसी और चीज के लिए। So what happened because of that? तो क्या हुआ उसके कारण? Verse 13. 13वां पद, It says, "You have forsaken me and served other gods. तुमने मुझे त्याग दिया और दूसरे देवी देवताओं की आराधना करी, So I will no longer save you." इसलिए मैं तुम्हें ना छुड़ाऊंगा। You see, my friends, देखिए मेरे मित्रों, God is a God of mercy. परमेश्वर दयालु परमेश्वर He है। is a patient God. वो बहुत ही सहनशील He is a परमेश्वर है। loving God. वो प्रेमी परमेश्वर But है। there comes a time when God Himself will give up on you. लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आप ही अपने आप आपको छोड़ देगा। He said, because He says, "I have given you enough opportunities." क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने तुमको बहुत बार मौके दिए हैं। And God says, "I will no longer save और you." परमेश्वर कहता है मैं तुमको अब नहीं छुड़ाऊंगा। The anger of the Lord is very hot against Israel. परमेश्वर का क्रोध इजराइलियों के प्रति बहुत ही गर्म है। And what did God do? और परमेश्वर ने क्या किया? God said to them, परमेश्वर ने उनसे कहा, verse 14, 14वां पद, "Go and cry out to the gods you have chosen." जागो अपने मन को उन देवी देवताओं के पास दुहाई दो। Let them save you when you are in trouble. तुम्हारे संकट के समय में होने पाए वो तुम्हें छुड़ाए। Why are you coming to me now? तुम मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? Why don't you cry to those
gods? तुम जाकर उन देवी देवताओं को क्यों नहीं तुम पुकारते? My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, if you hear God speak to you about your sin in your life, अगर परमेश्वर आपसे आपके पापों के बारे में बात करता है what तो would be one sin that God will tell you about? एक वो कौन सा पाप होगा जो परमेश्वर आपसे आपको बोलेगा? God is aware of the sin in your life. परमेश्वर जानता है कि वो पाप आपके जीवन में क्या With the है। people of God, Israel, इजरायली लोगों के साथ बाइबल में it was that they left the living God उनके साथ ये था कि उन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया था and they created gods out of rocks and wood and they started worshipping the pagan gods of people out there in the Gentiles. उन्होंने पत्थरों से लकड़ियों से अपने लिए ईश्वरों को बना लिया था और वो दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करने लगे So थे। God specifically said, your sin is idol worship. इसलिए परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि तुम्हारा जो पाप है वो मूर्ति पूजा करना है। If God is speaking to you right now, अगर परमेश्वर आपसे इस समय बात करता है तो what will be the specific sin that he will be speaking to you about? कौन सा वो स्पष्ट पाप है जो आपसे वो बात करेगा? I want you to think about that मैं चाहता हूं आप उसके लिए विचार करें, because that is the stumbling block for God saving you from your crisis right now. क्योंकि वही वो पाप है जो आपके लिए एक रुकावट है कि आप परमेश्वर में बढ़ सकें। So what you and I need is not me laying hands on you and praying for you. यहाँ पर ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि मैं आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना You करूं। don't need a prophet coming from Africa to prophesy over you. जरूरी नहीं है कि अफ्रीका से आपके लिए भविष्यद्वक्ता आए जो आपके लिए प्रार्थना You need करे। to simply hear the voice of God and repent of your sin. आपको बस साधारण रूप से परमेश्वर की वाणी सुननी है और पश्चाताप करना है। Hear what God is saying to you. सुनना है जो परमेश्वर हमसे बोल रहा है। How many of you hear what God is saying to you right now? क्या आप सुन पा रहे हैं परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? Is your heart, is your mind open to the voice of God? क्या आपका दिल, आपका दिमाग खुला हुआ है परमेश्वर की आवाज के Or प्रति? are you like Pharaoh, so hardened that you cannot even hear and identify the sin that you are living और in? या आप उस फिरौन राजा के समान हो गए हैं कि आपका हृदय इतना कठोर है कि ना आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं परमेश्वर की आवाज। Hallelujah. We need to hear what the Holy Spirit is saying about the sin in my life. हमको सुनना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे पापों के बारे में हमसे क्या कह रहा है। Sometimes, people ask me, do you know about this person? That person is doing this sin in their life. कई बार लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आप जानते हैं उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ऐसा ऐसा पाप कर रहा है And that person is supposed to be a pastor or a man of God or a Christian. और वो व्यक्ति को एक पासवान होना है, एक अच्छा मसीही होना है। You know what my answer is? आपको पता है मेरा उत्तर क्या होता है? The Holy Spirit will bear witness in his heart about his sin. पवित्र आत्मा उसके अंदर वो साक्षी बनेगी वो बताने के लिए कि उसके पाप क्या It है। is up to him and his God to deal with his sin. वो उस व्यक्ति के प्रति परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच की बात है। I cannot fix the sin problem of all people. मैं सारे लोगों के पापों को नहीं ठीक कर सकता, I can only fix my problem. मैं सिर्फ अपने समस्या को सही कर सकता हूँ। Amen. And I need to allow the Holy Spirit to fix my और problem. मुझको अनुमति देनी है पवित्र आत्मा को कि वो मेरी परेशानियों को I ठीक am not करे। Holy Spirit to go and fix other people's sin problem. मैं पवित्र आत्मा नहीं हूँ कि मैं दूसरों लोगों को जाकर उनकी समस्याओं को ठीक But करूं। when we allow the Holy Spirit to work in us, the Holy Spirit will reveal to us what is unholiness in our लेकिन lives. जब हम अनुमति देते हैं पवित्र आत्मा को कि हमारे जीवन में आए तो वो हमको बताता है कि गलत क्या है। Ammon आमोन is east of the Jordan River. यर्दन नदी का वो पूर्वी भाग है। If you will look at the modern map, अगर हम आज के आधुनिक उसको नक्शे को देखें तो you would find the country of Jordan and its capital city. आप ये पाएंगे कि यर्दन जो शहर है और उसका जो कैपिटल सिटी है, And the capital city is Amman. और जो कैपिटल सिटी उसका जो है उसका नाम है अम्मान। Amman is the new name of Ammon. अम्मोन का राजधानी, अम्मोन जो पुराना नाम था अभी का जो नाम है वो है अम्मान। The Ammonite kingdom became the modern day Jordan. जो अम्मोनियों की जो राज्य था वो आज के वर्तमान समय में यर्दन है। So these people of east of the Jordan were the Ammonites. जो लोग जो पूर्वी यर्दन की ओर रहते थे
उनको अमोनियों के नाम से जाना जाता था। You see the picture here? आप एक चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर। These people left their God. उन्होंने अपने परमेश्वरों को छोड़ दिया। They forsook the living God. उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया। They pushed God away from their life. उन्होंने अपने जीवनों से उसको धक्का मार के अलग कर They दिया। got rid of the God of their national people and the nation of Israel. उनके राष्ट्र इज़राइल राष्ट्र के जो परमेश्वर को था उन्होंने त्याग दिया। They went down to the Ammonites to embrace their God. वो नीचे चले गए और अमोनियों के पास जाकर उनके ईश्वरों की आराधना की। You see, we must always worship something in our life. देखिए हमको अपने जीवन में किसी न किसी चीज की आराधना करनी है। If you are not worshiping God, अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते you could be worshiping money. तो शायद आप धन की उपासना करते हैं। If you are not worshiping money, अगर आप धन की उपासना नहीं करते हैं you may be worshiping your car. शायद आप अपने वाहन की उपासना करते हैं। If you're not worshiping your car, अगर आप अपनी वाहन की उपासना नहीं करते you may be worshiping your work, your तो job. आप शायद अपने कार्य जो आप काम करते हैं उसकी आराधना करते हैं। And so here the people of Israel, they replaced their God with the God of the pagans. इसीलिए जो इजरायलियों के लोगों ने दूसरे देवी देवताओं की आराधना करी परमेश्वर की जगह में। And so here these Israelites, इसलिए यहाँ पर इजरायलियों ने, do you know Jewish people are some of the smartest people on earth? आपको पता है यहूदी लोग कुछ ज्यादा ही तीव्र चतुर लोग होते हैं इस दुनिया Very में। sharp. वो बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं। And these smart people are now bowing before this little piece of rock. और जितने बुद्धिजीवी ये लोग हैं अब एक पत्थर के सामने झुक रहे हैं। This funny looking things they are worshipping. जो एक बड़ी अजीब सी विचित्र सी बड़ा मजाकिया सी दिखती है उन चीजों के सामने झुक रहे हैं। And they believe all these superstitions. और जितना भी अंधविश्वास है वो उस पर विश्वास कर रहे हैं। And maybe they should be named, these people should be named something like Dodo. और इन लोगों का नाम कुछ डोडो के समान दो के समान होना चाहिए to do these kind of crazy things. जो ऐसे ऐसे पागलपन वाले काम करते हैं। You see, the people of God have committed sins. देखिए परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के प्रति पाप किया। Jeremiah the prophet, यर्मिया जो नबी था echoing the words of the sins of Israel. वो इजरायलियों के पापों को बताते हुए ऐसा कहता है। He says they have forsaken God. वहां ऐसा लिखा है, वो कहता है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, God, the fountain of the living water. जो जीवन जल का स्रोत है। And Jeremiah says they have hewn out for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. और यर्मिया कहता है कि उन्होंने अपने लिए ऐसे हौद बना लिए हैं जिसमें पानी रुकता नहीं है, छेद है। They left the source of the living water. उन्होंने जो जीवित जल का स्रोत था उसको ही छोड़ दिया। And they dug holes in rocks so that during rainy season water will hold in these rocks, but these rocks had leak and the water will drain away. और उन्होंने चट्टानों में ऐसी जगहें बना ली जहां उन्होंने पानी को इकट्ठा किया, लेकिन उसमें हौद मतलब छेद था। You see, I remember when I was a kid, मुझे याद है जब मैं एक बच्चा था, even when summer comes, our water well in the water is only enough for drinking. जो पानी का कुआं होता था बस उसमें पीने का ही पानी बच जाता था बस। And we have river that goes through our property. और हमारा जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक नदी बहती है। But during the summer days, even the river dries out. लेकिन गर्मियों के दिनों में वो नदी भी सूख जाती थी। So as kids, our job was to dig well in the middle of the river. तो बच्चे होकर हमारा काम ये होता था कि उस सूखी नदी के बीच में कुआं बना देना। How many of you have done something like that? आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया है कभी? Yeah, I can see some smiles, some memories coming. मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कुछ याददाश्त कुछ वापस So आ we रही है। used to dig this well in the middle of the river. तो हम उस नदी के बीच में कुआं खोद देते थे। And it goes so deep. और वो इतना ज्यादा गहरा Then जाता there था are rocks under there. और वहां पर पत्थर होते As थे। kids, we used to have lots of fun finding water in the river. और बच्चे होकर हमको बड़ा आनंद आता था उन पत्थरों को निकालना, पानी को पाना। And then we used to cover this hole with the coconut leaf during the day so nothing falls in और it. फिर हम उस कुएं को बनाकर उसको जो है नारियल के पत्तों से ढका देते थे ताकि उसके ऊपर कोई ना कुछ। Every 4 or 5 hours, we will go with pots on our head and go with coconut shell in our hand, and we go down into these little holes, and we used to collect this water into the pots. और हम क्या करते थे कि पानियों को घड़ों में भर भर कर इस जगह में लेकर जाते थे, और जो उनके I don't know what to call for shell, नारियल के जो छिलके होते हैं उनके साथ।
And so there are times, at night, in the night time, you cannot wait till morning. और रात के समय ऐसा होता था कि हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर पाते थे, Because in the morning, when we are sleeping, some neighbor people will come and steal our water. क्योंकि रात के समय में हमारा पड़ोसी कोई आकर वहां से पानी चोरी कर लेता था। And so we used to go at night, 10 o'clock. इसलिए रात में 10 बजे हम वहां जाते थे, And then our grandfather will come and wake you up at 2 a.m. in the morning. और फिर हमारे दादाजी आकर हमको 2 बजे सुबह उठा देते So थे, 2 a.m., here we are with pots on our heads. और 2 बजे करीब सुबह सुबह उन पानी के घड़ों को लेकर हम जा रहे होते थे। And we had no torch in those days. और उस समय हमारे पास रोशनी के लिए कोई मशालें नहीं होती थी। We have torch made of coconut leaves and we put fire on the end of the coconut leaf and that is our torch. और हमारे पास टॉर्च नहीं होती थी तो हम पत्तों को, नारियल के बड़े बड़े पत्तों को आगे से थोड़ा जला दिया करते थे, तो वो हमारी रोशनी बन जाती थी। And so sometimes we go there और कभी कभी हम वहां जाते थे and with our coconut torch, और हमारे पास वो कोकोनट के, नारियल की जो पत्तों की जो वो रोशनी होती थी, we look into our water. हम अपने पानी को देखते थे We find out that a mouse fell and died in the water. और हम पानी में देखते थे कि एक चूहा मरकर पानी में गिर गया। Our water is spoiled. अब हमारा पानी सड़ गया। You see, when you don't have the real source of clean water and you go for these kind of jugaad work, this is what will happen to you. देखिए, जब हम लोग पानी बहते हुए स्रोत के पास नहीं जाते हैं, तब ऐसे ही ये जो जुगाड़ होता है उसी में कुछ गड़बड़ हो जाती है। This is what happened to the people of Israel. यही इजरायली लोगों के साथ हुआ। They had the fountain of the living water, the source of abundance of God's provisions. उनके पास परमेश्वर जो जीवन जल का स्रोत है उसकी सारी भरपूरी थी। And they have instead drawn cisterns that would leak. लेकिन उन्होंने ऐसे हौद बनाए जो चूता था। The severity of their sin. उनके पाप की जो गंभीरता थी। If you look at chapter 2 verse 11, अगर हम अध्याय 2 का 11वां पद देखें, or chapter 3 verse 7, या तीसरे अध्याय का 7वां पद chapter देखें, 3 verse 12, तीसरे अध्याय का 12वां पद chapter देखें, 4 verse 1, चौथे अध्याय का पहला पद chapter देखें, 6 verse 1, छठे अध्याय का पहला पद chapter देखें, 10 verse 6, 10वें अध्याय का 6वां पद देखें, throughout the book of Judges, पूरे न्यायों की पुस्तक में you see it says they did evil in the sight of the हम Lord. पाते हैं, वचन में लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बुरा ही किया। My friends, we are not talking about the pagan people. मित्रों, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। We're talking about God's chosen people. हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। What did they do? उन्होंने क्या किया? They did evil in the sight of उन्होंने God. परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। Really? सच में? You love their God so much? क्या आप उनके ईश्वरों को ज्यादा प्रेम करते हो? Okay, you love their idols? ठीक है, आप उनके देवी देवताओं को पसंद करते हो? Okay, I'm now going to turn you into manufacturers of idols now. ठीक है, अगर तुम उनको इतना पसंद करते हो तो मैं अब तुमको उनकी मूर्तियों को बनाने वाला बना From देता हूं। that year, when found in verse 8, हम पाते हैं 8वें पद में, they harassed and oppressed the children of Israel for 18 years. 18 वर्षों के लिए उन्होंने इजरायली लोगों को सताया। The children of Israel who were on the other side of Jordan, इजरायली लोग जो है यर्दन के दूसरे पार थे, in the land of the Amorites in Gilead, गिलियाद में अमोनियों के उस देश में थे, and there were oppression by the enemies who hated God. और वहां पर ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का विरोध करते थे, उन्होंने सताया। They opposed you, they persecuted you. उन्होंने सताया और ताड़ना दी। I will now deliver you no more. और अब मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा। Go and cry to those gods. जाओ, तुम जाकर उन ईश्वरों के सामने रो, Let them deliver you in your उन्हें पाए time of वो distress. तुमको छुड़ाएं। You see, there is only one problem with crying out to gods that you have chosen. यहाँ पर एक ही समस्या है, अगर आप उन ईश्वरों के पास जाकर उनके सामने रोते हैं तो। Crying out to the God of Chemosh, अगर यमोश के अगर आप ईश्वर के पास जाकर रोते the हैं God of Hadad, अगर हदाद के ईश्वर के पास जाकर रोते हैं the तो, Baal God, अगर बाल के देवी देवताओं के पास जाकर रोते हैं Asherah तो, God, अशेरा के देवी देवता के and पास जाकर those रोते other हैं, gods and goddesses. और जो भी दूसरे देवी देवताएं हैं, There's only one problem crying out to these gods. एक ही समस्या है अगर आप उनके पास जाकर रोते हैं तो। You know what's the problem? आपको पता है समस्या क्या है? They don't exist. वो रहते ही नहीं, वो जीवित ही नहीं है।
You're crying out, but nobody exists. आप रो तो रहे हैं लेकिन वो उपस्थित ही नहीं है, जीवित ही नहीं। These are fake gods made by men. वो एक झूठे ना रहने वाले एक ऐसे ईश्वर हैं जिनको इंसानों ने बना रखा Like है। fake currencies, you have fake gods. जैसे एक जो एक पैसा होता है नकली, वैसे ही वो लोग हैं ईश्वर के। Like you have fake news. This is the fake news. जैसे एक झूठी समाचार होता है, वैसे ही एक झूठे एक समाचार। These are some made up stories. कुछ ऐसी ही मनगढ़ंत बनाई हुई सी घटनाएं, People कहानियां हैं। make those gods. मनुष्य उन ईश्वरों को बनाते हैं। My dear friends, there is only one true living God. मित्रों, सिर्फ एक ही जीवित परमेश्वर है। There is only one who is the creator. सिर्फ एक ही सृष्टि करता है। So you can pray all day long, like the priest of Baal and Asherah did on Mount तो Carmel. आप पूरे दिन भर उस ईश्वर से जो बाल और अशेरा के देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। All day long they cut themselves. पूरे दिन भर वो अपने आप को काटते थे, मारते थे। All day long they hop around and they roll around. वो पूरे दिन भर जो है अपने आप को घात करते थे और जमीन पर अपने आप को घुमाते थे। They prayed. उन्होंने प्रार्थना की। But Elijah लेकिन एलीशा, watch the whole thing in 1 King chapter एलिया, 18. पहला राजा की पुस्तक उसके 18वें अध्याय में एलिया, 1 King chapter एलीशा, 18. पहला राजा उसका 18वां And I अध्याय। think Elijah prays in 18 or in verse 21. और शायद वहां पर 18वें में या 22वें पद में Elijah makes a very short prayer. वहां पे बहुत एक छोटी सी प्रार्थना एलीशा करता है। You see, it's not about the length of your prayer or the length of your rituals that you perform. ये मतलब नहीं रखता कि आप कितनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं या आप कितने लंबे लंबे क्रियाओं को करते हैं। It is about to whom you are praying. लेकिन ये मतलब रखता है कि आप किस से प्रार्थना करते It हैं। is not about the length of your rituals. आप कितना लंबा लंबा अपने उन रीति रिवाजों को करते हैं। God says, परमेश्वर कहता है, go and cry to them. जाओ तुम उन ईश्वरों की आराधना See what they will do. उनके सामने जाकर रो और देखो वो क्या करेंगे तुम्हारे लिए। You know what the people of Israel realized? आपको पता है परमेश्वर इजरायली लोगों ने क्या एहसास किया। Look at chapter 10. 10वें अध्याय में देखें, It says, वहां पर ऐसा लिखा verse है 15, 15वें पद में, the Israelites said to the Lord, इजराइलियों ने यहोवा से कहा, we have sinned. हमने पाप किया है। What did they do? उन्होंने क्या किया? We have sinned. हमने पाप किया है। My dear friends, if you want breakthrough in your life, मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप अपने जीवन में कुछ आशीष चाहते if you हो, want God to open the door, अगर आप चाहते परमेश्वर आपके जीवन में एक द्वार खोले, you need to know who your God is. आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कौन है And you need to come before Him और आपको उसके पास आना है and say to Him, और उससे कहना है, against you and you only have I sinned. तेरे और बस तेरे ही विरुद्ध मैंने पाप किया है। Hallelujah. Hallelujah. The people of Israel finally says, इजराइल के लोगों ने आखिरी में ये महसूस We have कर लिया, sinned. हमने पाप किया है। and then what they say, और फिर देखिए क्या लिखा है, do with us whatever you think is best. इसीलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो हमारे लिए कर। How many of you like God to just take full control of your life? आप में से कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन का पूरा नियंत्रण ले ले Yeah, just give the steering wheel to Him. और परमेश्वर के हाथों में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दे दे। Amen. Some of us are back, those of us who are drivers, we are like backseat drivers. हम लोग जो हमेशा गाड़ी चलाते रहते हैं, हम लोग पीछे बैठने वाले। Even though we are not driving, शायद हम चला नहीं रहे होंगे we गाड़ी, can drive the car sitting in the back seat. हम पीछे बैठकर भी गाड़ी चला सकते हैं। वो करो, ये करो, ऐसे करो, ब्रेक ऐसे- दबाओ. Yeah, we are very good at backseat driving sometimes. कई बार पीछे And we बैठकर do हम the बहुत- same in our spiritual life. हम आत्मिक जीवन में भी कई बार ऐसे करते हैं। We tell God what to do. हम परमेश्वर को बताते हैं उन्हें क्या करना है। We are also very good at preaching to God. हम परमेश्वर को प्रचार करने के लिए भी बहुत अच्छा है। Some people quote Bible verses after verses to remind God of His word. कई बार परमेश्वर के लोग परमेश्वर को एक के बाद ढेर सारे वचनों को परमेश्वर को याद दिलाते All हैं। they are trying to impress everybody how much Bible verse they know. वो सबको बताना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं कि वो कितनी ज्यादा बाइबल जानते हैं। You see, our prayers are not meant to be displays of how, knowledgeable we are. हमारी प्रार्थनाओं का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बुद्धि को प्रकट करें कि हम कितना ज्यादा ज्ञान रखते But हैं, a simple confession. लेकिन एक साधारण अंगीकार, Say, God, परमेश्वर I'm a sinner. मैं पापी हूँ,
I need you. मेरे को तेरी जरूरत है, I give everything to you. मैं सब कुछ तुझे दे देता हूँ, I done whatever I can. मैंने जो कुछ भी करना था मैंने कर You दिया, just do what you want. तू वो कर जो तू चाहता है। Lord, do what you think is best for me. परमेश्वर तू वो कर जो तुझे लगता है उत्तम है मेरे लिए। This is what the Israelites says now. यहाँ इजराइलियों ने ऐसा कहा। यहाँ Look at verse 15. 15वें पद को देखते हैं। But please, लेकिन कृपया कर कर, but please कृपया कृपा कर कर rescue us now. हमको बचा ले, अब छुड़ा ले, Rescue me. मुझे छुड़ा ले। How many of you will say to the Lord, हम में से कितने लोग परमेश्वर से ऐसा कह Lord, सकते हैं? I need you to rescue me. मैं परमेश्वर चाहता हूँ कि तू मुझे छुड़ा ले, I need your hand. मैं तेरा हाथ चाहता हूँ, I want you to deliver me. मैं चाहता हूँ तू मुझे छुड़ा ले, Do what you want with my life. कर वो जो तू करना चाहता है मेरे जीवन के साथ। You see, now this is different. देखिए यहाँ पर अब चीज अलग है। They prayed. उन्होंने प्रार्थना की, They cried. उन्होंने परमेश्वर के सामने रोए, They were all emotional. वो बहुत ही भावुक हो गए, But it was all not good enough. लेकिन ये सब काफी नहीं था। But this time, लेकिन इस बार this prayer and this crying ये प्रार्थना और ये रोना is different बहुत अलग था, because there was repentance. क्योंकि उसमें एक पश्चाताप था। When you truly repent before God, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, even though God gives up on you, परमेश्वर ने शायद हमें छोड़ दिया होगा, here God has given them up. यहाँ परमेश्वर ने इन लोगों को छोड़ दिया था, But when they recognized लेकिन जब उन्होंने पहचाना that we have sinned, कि हमने पाप किया है, we surrender हम अपने आप को दे देते हैं and truly repented of their और sins, सच में अपने पापों से पश्चाताप किया, God could not see them suffer any longer. परमेश्वर ने उनको फिर दोबारा से उत्पीड़न में नहीं देख पाया। You see, simply turning to God is not enough. बस ऐसे ही परमेश्वर की ओर मुड़ना काफी नहीं है, Simply becoming a Christian is not enough. साधारण रूप से एक मसीही बन जाना काफी नहीं है, Simply going under the water and coming out is not enough. साधारण रूप से पानी के अंदर डुबकी लगाकर बाहर आ जाना काफी नहीं You है। go under the water as a dry sinner, आप पानी के जाने से पहले एक सूखे एक पापी होते हैं and you simply come out as a wet sinner. और आप बाहर निकल आते हैं गीला पापी बनकर। That's what happens without repentance. यही होता है जब हमारे अंदर एक पश्चातापी मन नहीं होता। So what did they do? इसलिए उन्होंने क्या किया? They turned away from their pagan gods. वो दूसरे देवी देवता मूर्ति पूजा से दूर हो गए। They throw away and destroy their foreign gods. उन्होंने सारे जो दूसरे देवी देवताओं थे उनको छोड़ दिया, उनको तोड़ दिया। And it says और वहां पे ऐसा लिखा है, they began to serve God. वो परमेश्वर की सेवा करने लगे। Verse 16. 16वें पद में लिखा है, They got rid of their foreign gods. सारे पराई देवी देवताओं के मध्य से उन्होंने दूर हो गए। Everybody say got rid. दूर हो गए, Got rid. दूर हो गए। That means take it, tear it, separate it, detach it, throw it away, and it has nothing to do with you anymore. इसका मतलब यह है कि उखाड़ फेंके, तोड़ डालें, फाड़ दें या बिल्कुल नष्ट कर दें अपने जीवन से। I don't know what is God asking you to get rid of right मुझे now. नहीं पता कि इस समय परमेश्वर आप में से किस चीज के लिए कहता है आपको कि दूर कर दो। There are some things that you're holding on. कोई ऐसी चीज है जिसको आप पकड़े हुए हो, You've given it all to God, आपने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है, but this area a little bit here, लेकिन थोड़ा सा वो एक कोना है, this little part here, थोड़ा सा कोना वहां पर है, that part over there. थोड़ा सा कोना वहां पर है। Today God is asking you आज परमेश्वर हमसे बोल to रहा है, tear it, बिल्कुल उसे फाड़ डालें, throw it away, फेंक डालें, destroy it, नष्ट कर डालें उसको। and in Jesus' name, Yes. never to return. यीशु के नाम से उन चीजों में वापस ना जाएं। Hallelujah. आमेन, आमेन। You cannot serve God and mammon. आप परमेश्वर की और दूसरी चीज की आराधना नहीं कर सकते। Hallelujah. आमेन। They got rid of their foreign gods. और वो जो है पराये देवी देवताओं से दूर हो गए। And what did they do? और फिर उन्होंने क्या किया? Look into your Bible. अपनी बाइबल को देखें। They served the Lord. उन्होंने यहोवा की उपासना की। Everybody say, they serve the Lord. परमेश्वर की सेवा की, उपासना की। How many of you will say today,
आप में से आज कितने लोग ऐसा कहेंगे? Lord, one thing I want to do. एक चीज मैं करना चाहता I हूँ, want to serve my God. मैं तेरी उपासना करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। If you love somebody, what do you want to do? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? You will serve them. आप उनकी सेवा करेंगे। Why you made a cup of chai for your husband? आप जाकर एक चाय का कप उनके लिए तैयार करेंगे। नहीं, आप क्यों आज सुबह उठ के चाय आपका पति के लिए बनाया? आप क्यों बनाया? इसलिए वो रूटीन है, चाय पीना है, इसलिए बनाया। हाँ? क्यों बनाया? बोलो। आप उनको प्यार करता है, राइट? Why you make those chapatis? क्यों बनाते हैं आप वो रोटियां? You make those rotis because you love your husband. आप उन रोटियों को इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप अपने पति से प्रेम करते Amen? हैं। When you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, you serve them. आप उनकी सेवा करते हैं। Do you love your God? अगर आप परमेश्वर की सेवा कर प्रेम करते Do you हैं, love your God? क्या आप अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? And you do that by serving Him. और आप अपना प्रेम उसकी सेवा करके करते The हैं। Israelites served the Lord. इजरायलियों ने परमेश्वर की उपासना की। Before the breakthrough came, इससे पहले कि छुड़ौती आई, before God even began to answer their prayer, इससे पहले कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे before रहा the था, blessings of God came, इससे पहले परमेश्वर की आशीषें आई, before God even answered their prayer, इससे पहले कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, the people of God took some actions and steps that became a turning point to change even God's heart. परमेश्वर के लोगों ने अपनी ओर से पहला कदम उठा के ऐसा काम किया जिसने उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति Many कार्य of किया। us are like, God, if you will do this for me, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, अगर परमेश्वर तू मेरे लिए ये करेगा then I तो will do that for you. तब मैं तेरे लिए वो करूंगा। Or if you build this house for me, अगर तू मेरे लिए इस घर को बना देगा I will start prayer in my house. तब मैं अपने घर में प्रार्थना शुरू Or if you करूंगा। give me a car, I will start going to church. अगर तू मुझे एक अच्छा वाहन देगा तब मैं कलीसिया में जाऊंगा। You see, what did they do? देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, They got rid of their sinful lifestyle उन्होंने अपनी सारी उन पापी जीवन को दूर करके and they began to serve the वो Lord. परमेश्वर की आराधना उपासना करने And as a लगे result of और that, उसके परिणाम स्वरूप God could bear Israel's misery no और longer. परमेश्वर ने जो उनके विरोध में जो कष्ट था उसको दोबारा से उन्होंने नहीं सहा। You see, when you begin to walk in obedience जब आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चलने and लगते you हैं begin to do things by faith, और आप विश्वास के साथ कार्यों को करने लगते हैं, trusting God that He will, in His due course of time, will give you the breakthrough. God will perform the miracles. विश्वास करते हुए कि परमेश्वर नियुक्त समय में उस चीज के प्रति मुझे आशीष देगा, परमेश्वर चमत्कार करने लगता है। Hallelujah.